हम लोग आ गए अगली क्लास में। आज की क्लास हमने लास्ट क्लास में रिबेट सीख लिया। अब रिबेट के बाद एक नए कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ सर ये कोई नया टॉपिक है? नहीं, दिस इज द टॉपिक ऑफ टैक्स रेट इटसेल्फ। मैं तुम्हें बताऊं, टैक्स रेट विल हैव अराउंड 10 आवर्स क्लास। तो अभी जो आप छोटी छोटी क्लासेस कर रहे हो उसमें छोटे छोटे पार्ट आ रहे हो, वो सारे पार्ट टैक्स रेट से रिलेटेड है। सो मार्जिनल रिलीफ इज वन ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू टैक्स रेट। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, ये है सुखी राम। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेलो? सुखी राम। और ये एक फेलो है जिसका नाम है दुखी राम। Okay. The data you have, Mr. Sukhi Ram is having income of 50 lakh. And Mr. Dukhi Ram is also having income of 51 lakh. Now you will feel why Mr. Dukhi Ram is Dukhi Ram? Because he is having the higher income. No, in spite he is having the higher income, still Mr. Dukhi Ram is Dukhi Ram. Let me know why. You need to calculate the tax liability of Sukhi and Dukhi. Now, compute the tax. So, on first 10 lakh, Mr. Sukhi will have the tax 8,12,500. And remaining 40 lakh, Mr. Sukhi will have the tax of 40 lakh. 40 lakh pe 30%, 12 lakh. Now his total tax, you don't need to write Sukhi Dukhi. Just learn the concept. ठीक है? 13,12,500. Now, whether बताओ Sukhi Ram will be liable to pay surcharge? His income is 50 lakh. Tell me whether Sukhi will be liable to pay surcharge? Yes or no? And answer is obviously no. Because जिनकी इनकम 50 लाख तक है उन्हें सरचार्ज नहीं देना पड़ता। तो सिंस मिस्टर सुखीज इनकम इज जस्ट एट 50 lakh, therefore he is not liable to pay surcharge. Now his tax liability is finally 13,12,500. Add cess. Okay, you can ignore cess. For a while ignore cess. So Mr. Sukhi Ram is having the tax of 13,12,500. Whereas Mr. Dukhi Ram tax liability will be on first 10 lakh, 1,12,500, and next 41 lakh, he will have the tax at the rate 30%, that is 12,30,000. So his final tax liability is 13,42,500. I hope you are okay with it. Now, whether he will be liable to surcharge or not, tell me yes or no. Whether he will be liable to surcharge or not? Yes. Why? Because his income is more than 50 lakh. What shall be the rate of surcharge? 10%. How much is that? 1,34,250. Now, he will have the tax liability of 14 lakh 76,750. So you need to find out Mr. Sukhi और Mr. Dukhi में कौन ज्यादा टैक्स दे रहा है and by what amount. So what is the increase in tax? Check it. Increase in tax is 14,76,750 minus 13,12,500. So increase in tax is 164,250. No, sis, last day add Daran. The problem is the marginal relief concept is independent of sis. So right now I'm not teaching you how to compute tax. Right now I'm teaching you marginal relief. I'm giving you a situation of two fellows, Sukhi and Dukhi. One is earning 50 lakh, another is earning 51 lakh. And right now before cess, their tax liability is this much, 13,12,500 Sukhi and 14,76,750 Dukhi. For a while, just for 5 minutes, ignore cess. So you can here understand that Mr. Dukhi is having the tax liability
higher than Sukhi by 1,64,250, whereas increase in income is only 1 lakh. अरे दुखी से सुखी कितना ज्यादा कमा रहा है? दुखी सुखी से कितना ज्यादा कमा रहा है? 1 लाख. यू कैन चेक. और टैक्स कितना ज्यादा दे रहा है? 164,250. दुखी बोलेगा ये क्या हुआ, हम सिर्फ सुखी से 1 लाख ज्यादा कमाया और आप मेरे से 1,64,250 का एडिशनल टैक्स ले लिया. आप मेरा पूरा 1 लाख ले लो. वाई आर यू चार्जिंग मोर टैक्स देन इनकम? अरे ये मेरा दोस्त है सुखी, ये कमाता है सिर्फ, ये इससे मैं ज्यादा कमाता हूं सिर्फ 1 लाख, और इससे मैं ज्यादा टैक्स देता हूं 1,64,250 का. ये तो इनजस्टिस है. मैं सिर्फ इससे 1 लाख ज्यादा कमाया और मैं इससे, हियर द टैक्स इज मोर देन इनकम. तो लॉ ने बोला हाँ यार रबड़ हुआ. रबड़ तो हुआ. बताओ रबड़ हुआ क्यों? बिकॉज इसको ऊपर सरचार्ज लगा नहीं, और यहां पे थोड़ी सी इनकम बढ़ती सरचार्ज लग गया, और सरचार्ज लगने के कारण अचानक टैक्स बाउंस हो गया 10% से. इनकम तो 10% से बाउंस नहीं हुई, टैक्स 10% से बाउंस हो गया. एंड दैट इज वाई ये रेडिकुलस फीचर आया. तो लॉ ने बोला यार ठीक है ठीक है ठीक है, आई विल गिव यू द रिलीफ. और फिर कॉन्सेप्ट आया क्या चीज का? मार्जिनल रिलीफ. नाउ व्हाट डज इट से? मार्जिनल रिलीफ बोलता है कि मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू, तुम्हारा जितना ज्यादा इनकम है ना, उससे वैसे मैं टैक्स तुमसे लूंगा नहीं. तो चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन टैक्स विल बी द रिलीफ. दिस इज द सिंबल ऑफ चेंज. तो चेंज इन इनकम minus change in tax is equal to relief. You can say in other words, income tax, या ऐसे बोल दे, tax on total income excluding cess minus tax on 50 lakh excluding cess भाई रिलीफ थोड़ा सा कवर किया है. It is change in tax minus change in income. And what is change in income? Your total income minus 50 lakh. So this become the formula of marginal relief. कि आपका टैक्स आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता. यदि आपका टैक्स आपकी इनकम से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतने की मैं रिलीफ दे दूंगा. तो व्हाट इज योर चेंज इन टैक्स? 162,500. व्हाट इज योर 164,250. एंड व्हाट इज योर चेंज इन इनकम? 1 lakh. सो यू विल गेट अ मार्जिनल रिलीफ ऑफ 64,250. अब ये 64,250 कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज दिस वन. चेंज इन टैक्स माइनस चेंज इन इनकम. व्हाट इज चेंज इन टैक्स? टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सेस, टैक्स ऑन 50 lakh excluding cess. Total income minus 50 lakh. Now put the value in the formula. What is the tax on total income? Total income is दुखी को रिलीफ चाहिए ना. Total income is 14,76,750. What is tax on 50 lakh? Tax on 50 lakh is 13,12,500. What is the difference? Difference is 164,250 minus. What is the total income? 51 lakh minus 50 lakh is equal to 1 lakh. What is your relief? 64,250. So MR is equal to 64,250. थोड़ा कम समझ में आया तब भी तो चाप नहीं है बॉस, मैं समझा दूंगा. टेक अनदर एग्जाम्पल. डोंट राइट. जब तक चीज बहुत अच्छे से समझ में ना आ जाए ना, टिल यू गेट द थिंग प्रॉपरली, डोंट राइट. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फर्स्ट, उसके बाद अपने लिखेंगे. एक
दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको दिया हुआ है, डोंट राइट, प्लीज डोंट राइट, मिस्टर ए हैज टोटल इनकम ऑफ 52 लाख। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टैक्स लायबिलिटी, तो हमने बोला लाओ निकाल देते। सबसे पहले आपने क्या निकाला, टैक्स ऑन 52 लाख। पहले 10 लाख पे 8/12/500, आई होप यू आर ओके विथ इट। नेक्स्ट 42 लाख पे 30%, यानी कि 12,60,000, या 13,72,500। Since his income is more than 50 lakh, therefore surcharge 10%, 137,250, या 750, या 729, 7,310, 1, या 15,09,750। हाँ, हमें चेक करना है क्या इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो मार्जिनल रिलीफ के लिए कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला याद है क्या, बताओ बच्चों, फॉर्मूला याद है क्या? तो फॉर्मूला था चेंज इन टैक्स माइनस चेंज इन इनकम। चेंज इन टैक्स कैसे निकालेंगे, टैक्स ऑन 52 लाख माइनस टैक्स ऑन 50 लाख। ये 50 लाख कहां से आया सर? अरे बॉस, 50 लाख तक सरचार्ज नहीं लगता, 50 से थोड़ी सी इनकम ज्यादा होते ही सरचार्ज लग जाता है। सिंस 50 से थोड़ी सी इनकम ज्यादा होते ही सरचार्ज लग जाता है, तो अचानक इनकम तो बढ़ती नहीं है, उससे बेसिक टैक्स बढ़ जाता है। तो 50 लाख तक कितना टैक्स था ये बताओ, और उसके बाद 52 लाख पे टैक्स कितना ये बताओ, माइनस चेंज इन इनकम। आपकी इनकम 50 लाख से कितनी ज्यादा है, 52 लाख है मेरी इनकम, और ये 50 लाख से 2 लाख ज्यादा है। अच्छा, टैक्स ऑन 52 लाख बताओ, तो याद या 15,09,750, दो निकाला हुआ ना टैक्स ऑन 52 लाख। हाँ, अब बताओ टैक्स ऑन 50 लाख कितना है, तो कैलकुलेटर में निकाल सकते हो। 10 लाख पे निल, 40 लाख पे 30%, या 12 लाख, 12 लाख पे 8/12/500, या आ गया 13,12,500। अब आप बताओ आपका इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया, तो 15,09,750 माइनस 13,12,500, या आ गया 197,250। ठीक है, ठीक है, लाउडर। हाँ, और ये आया 2 लाख। तो आपने चेक किया कि यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ निगेटिव में आ गया, मतलब इसको रिलीफ की दरकार ही नहीं है। रिलीफ इज कैलकुलेटेड हियर इन निगेटिव, इसलिए यहां पे मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, और फिर यहां पे आ जाएगा सेस, सेस 4%। तो आपने देखा कि मार्जिनल रिलीफ सेस से पहले आता है। सिंस मार्जिनल रिलीफ सेस से पहले आता है, इसलिए एमआर निकालते समय ये राइट हैंड साइड वाली इस वर्किंग में हमने सेस को कंसिडर नहीं किया। क्यों कंसिडर नहीं किया? क्योंकि सेस तो मार्जिनल रिलीफ के बाद आता है। 6390, $15,70,140। हाँ हुआ क्या, समझ में आया क्या? तो पहले आप कॉपी में चाहिए और थोड़ा सा थ्योरी लिखिए। पहले कॉपी में चाहिए, टाइटल दीजिए मार्जिनल रिलीफ। अब नीचे लाइन लिखिए, एप्लीकेबल टू ऑल। फिर नीचे कंडीशन लिखिए,
income is little more than surcharge limit. अब आपको पता है सरचार्ज लिमिट क्या है? 50 लाख, 100 लाख, 200 लाख, 500 लाख. इन सब सिचुएशन में क्या होगा मालूम? इनकम सपोज 200 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, 200 लाख से 50,000 रुपया ज्यादा इनकम है, तो इनकम बढ़ गई थोड़ी सी 50,000 और टैक्स बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा. क्योंकि 2 करोड़ के नीचे ही इनकम है तो 15% सरचार्ज है, 2 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 25% सरचार्ज है. तो सरचार्ज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जितनी आपकी इनकम नहीं बढ़ी. तो बंदा बोलेगा ये तो ज्यादा हो रहा है यार, मेरा इनकम थोड़ा सा ज्यादा है और टैक्स बहुत ज्यादा है. तो देन द पर्सन विल आस्क फॉर द रिलीफ. तो हम लोग बोलेंगे आपको रिलीफ मिलेगा. व्हाट्स विल बी द मार्जिनल रिलीफ? मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू चेंज इन टैक्स माइनस चेंज इन इनकम. फॉर्मूले में लिखे तो टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन सेस माइनस टैक्स ऑन 50 लाख. मे बी 100 लाख भी हो सकता है, मे बी 200 लाख भी हो सकता है, मे बी 500 लाख भी हो सकता है. अब ये बस समझने के लिए आप 50 लाख ही समझो. 1 करोड़ 2 करोड़ वाला क्या चक्कर है वो भी मैं समझा दूंगा. अभी आप 50 लाख ही समझो. चेंज इन इनकम, टोटल इनकम माइनस 50 लाख. देखिए वो 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है. अभी आप समझने के लिए 50 लाख ही समझो. नोट लिखिए. हेल्थ एजुकेशन सेस इज अप्लाइड आफ्टर मार्जिनल रिलीफ. ठीक है, ठीक है. एग्जाम्पल करिए. मिस्टर ए हैज टोटल इनकम ऑफ 50,50,000. 50,50,000. You can see income is little more than 50 lakh. आपको निकालना है टैक्स लायबिलिटी. सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे टैक्स ऑन 50,50,000. शुरू हो जाइए. बताइए टैक्स ऑन 50 लाख कितना हुआ सेस छोड़ के? अभी आप सेस मत करिएगा, पहले एमआर निकालना अपने को. एमआर मतलब मार्जिनल रिलीफ. साथ में हो, साथ में हो. वो डोंट वेट फॉर माई. अब राइट हैंड साइड में आप निकालिए कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ, या नीचे निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. नीचे निकाल लीजिए मार्जिनल रिलीफ. एमआर का फॉर्मूला आपको पता है? चेंज इन टैक्स माइनस चेंज इन इनकम. चेंज इन टैक्स माइनस चेंज इन इनकम. निकालते जाइए, डोंट वेट, पेन चलाते जाइए.
चेंज इन टैक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या आएगा. टैक्स ऑन 50,50,000 माइनस टैक्स ऑन 50 लाख. वैसे चेंज इन इनकम मतलब 50,50,000 माइनस 50 लाख. सब साथ में हो. अब आप 50,50,000 पे टैक्स निकाल लीजिए तो 14,98,750. 50 लाख पे टैक्स आपको पता ही है 13,12,500. ये तो आपको कैलकुलेशन नजर ही आ रहा है. ये कैलकुलेशन आया 136,250. अब इस 136,250 का यहाँ पे माइनस कर दीजिए. ये आपकी रिलीफ है. इसी को प्यार से बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ. आ गया क्या 136,250. ये माइनस करके आपका टैक्स आ गया 14,98,750 माइनस 136,250. तो ये आ गया 13,62,500. अब इसमें आप क्या ऐड करेंगे. सेस. क्या रेट से 4%. थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है ये. $14,17,000. 14,17,000. फिर से बोलिए. सरचार्ज एड करार आगे टैक्स হয়েছে 13,62,500. ये मेरा मिस्टेक है क्या. हाँ हाँ ये तो मिस्टेक হয়েছে. এটা হওয়ার উচিত ছিল 13,27,500. ওহ সবাই মিস্টেক হয়ে গেল. 13,27,500 into 1.1. तो ये आ गया 132,750. ये आ गया 14,60,250. ये आ गया 14,60,250. और फाइनली आ गया 97,750. राइट. अब 97,750 का रिलीफ दिए. फिर भी आंसर वही आया. नीचे का आंसर वही है 14,60,250 माइनस 97,750. नीचे का आंसर वही है. आंसर वही आया 14,17,000. राइट. 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 तो you learn marginal relief here. Nice. Nice. एक सम और कराता हूं. Illustration. Find tax liability of Mr. A having income of 100,20,000.
जैसे आपकी इनकम स्लैब वाली, वो सरचार्ज वाली स्लैब से थोड़ी सी ऊपर जाएगी, आपका एमआर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और जैसे आपका एमआर नेगेटिव आ जाए तो आपको एमआर कंप्यूट नहीं करना है। टू बी नोटेड, यदि आपकी इनकम 50, अभी आपने सम बनाया जिसमें 52 लाख आते हैं, एमआर नेगेटिव आ गया, तो आप ये मान के चल लीजिए 52 लाख से ऊपर इनकम आती है, आपको एमआर कंप्यूट नहीं करना है। एंड इफ योर इनकम इज 102 लाख से थोड़ा सा ज्यादा आ जाए तो आपको एमआर कंप्यूट नहीं करना है। वैसे यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा, 2 करोड़ 2 लाख आ जाए तो आपको एमआर कंप्यूट नहीं करना है। लेकिन यदि आपकी इनकम जस्ट बॉर्डर लाइन पे है, 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा, 50 लाख 40,000, 51 लाख, 51 लाख 20,000, then you need to compute MR. Similarly, यदि if your income is 100 लाख के बॉर्डर से थोड़ा सा आगे है, 1,40,000, 1,60,000, you need to compute MR. तो यहाँ पे अपने को MR compute करना पड़ेगा because income is little more than 100 लाख. The procedure is same. सबसे पहले निकालते हैं टैक्स ऑन 100 लाख 20,000. कैसे आएगा? 10 लाख पे टैक्स आया 8,12,500. आई एम लिटिल फास्टर. 90 लाख 20,000 पे टैक्स आया 27 लाख 6,000. I hope I'm right. Now your total tax is 28 lakh 18,500. Surcharge this time will be 15% because your income is more than 100 lakh. 28 lakh 18,500 का 15% निकालिए, यह आया 422,775. तो आपका टैक्स आफ्टर सरचार्ज आ गया या टैक्स बिफोर एमआर आ गया 32,41,275. 32,41,275. आई होप यहां तक राइट. लेकिन अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एमआर. एमआर निकालते हैं. कैलकुलेशन ऑफ एमआर, फॉर्मूला आपको पता ही है, चेंज इन टैक्स माइनस चेंज इन इनकम. इस बार तीसरे कंपैरिजन में चेंज इन टैक्स, टैक्स ऑन 100 लाख 20,000 माइनस टैक्स ऑन, तो पहले क्या कर रहे थे 50 लाख, लेकिन इस बार हम लोग 50 लाख से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, 100 लाख, क्योंकि हमारी इनकम 100 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है. वैसे यहां पे क्या आ गया? टोटल इनकम माइनस 100 लाख. तो टैक्स ऑन 100.2 लाख बताओ कितना आया? निकाला हुआ है 32,41,275. अब बताइए टैक्स ऑन 100 लाख कितना आएगा? कैलकुलेटर में निकालिए. आप कैलकुलेटर में टैक्स निकालना जानते हो. 10 लाख पे 8,12,500, 90 लाख पे 27 लाख, और सरचार्ज के लिए सिंस आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ के अंदर है, तो सरचार्ज हो जाएगा 10%. तो सरचार्ज के लिए 1.10 से मल्टीप्लाई करिए, यह आ गया 30,93,750. कोई डाउट है तो पूछिए. आपकी इनकम सिंस 100 लाख है, डॉट 100 लाख है, तो सरचार्ज रेट 15% नहीं पड़ेगा, सरचार्ज रेट 10% ही पड़ेगा. 30,93,750. यहाँ पे आ जाए 100.2 लाख माइनस 100 लाख, यह आ गया 32,41,275 माइनस 30,93,750. यह आ गया 147,525. और यह आ जाए 20,000. तो आपकी रिलीफ हो गई 127,525. आई होप आप साथ में. आपको रिलीफ मिल गई 127,525. $31,13,750 प्लस 4%. 124,550.
आपका टैक्स हो जाए 32,38,300, 32,38,300। तो गॉट इट कि एमआर का कॉन्सेप्ट तभी आता है व्हेन द इनकम इज थोड़ी सी ज्यादा, 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा, 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा, 2 करोड़, जो जो जहां जहां सरचार्ज सी स्लैब है ना, वहां से इनकम 50-60 हजार, 1 लाख 1.5 लाख ज्यादा है, तो आपको एमआर निकाल के कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। एग्जाम में मार्जिनल रिलीफ के सम्स नहीं आते, लेकिन यदि आ जाए तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। एग्जाम वो लोग ट्राई करते हैं कि सम्स में इनकम 50 लाख से बहुत ज्यादा हो। जैसे मैंने जो सम्स बनाया, इनकम थी 60 लाख, इनकम थी 80 लाख, इनकम थी 95 लाख, तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, क्योंकि 52 लाख आती तो मार्जिनल रिलीफ नेगेटिव हो गया। तो मार्जिनल रिलीफ तभी चाहिए होता है जब एमआर पॉजिटिव आए, और एमआर पॉजिटिव आएगा जब आपकी इनकम 50 लाख से 51,80,000 अप्रॉक्स हो। तो वैसे यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से 1 करोड़ 1,20,000, 1 करोड़ 1,10,000 हो तो एमआर का कॉन्सेप्ट आएगा। एमआर का कॉन्सेप्ट का बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना। यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो तो यहाँ पे 2 करोड़ से जितनी ज्यादा इनकम है, सपोज 2 करोड़ 80 लाख, तो यहाँ पे 2 करोड़ 80 लाख, यहाँ पे 2 करोड़ और यहाँ पे 2 करोड़। हाँ, इस तरीके से आपको सरचार्ज एमआर निकालना रहता है। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था एमआर। मुझे लगता है ये वाला पर्टिकुलरली वीडियो आपको दोबारा देख लेना चाहिए एमआर का। एक होम टास्क देता हूं एमआर का, जो आप करके रखना। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, ये होम टास्क है आपका, ऑफ मिस्टर ए। assume if his income is case 1 51 lakh, case 2 101 lakh, case 3 201.2 lakh, case 4 501.3 lakh. So the 4 sums are your homework. You need to do these 4 sums. चारों बार आपको एमआर निकालना पड़ेगा, क्योंकि चारों बार इनकम सरचार्ज की लिमिट से थोड़ी सी ज्यादा है, तो आपको एमआर चारों सम में निकाल के सम बनाना पड़ेगा। विद दिस होम टास्क ये छोटी सी क्लास 35 मिनट की क्लास हमारी ओवर हुई। आपने इंडिविजुअल का जितना जितना टैक्स का एस्पेक्ट था ना, टैक्स रेट, सरचार्ज रेट, एजुकेशन सेस, रिबेट, मार्जिनल रिलीफ, सब सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास मैं आपको सिखाऊंगा न्यू रिजीम ऑफ इंडिविजुअल। न्यू रिजीम, ये आपको पता है, ये सब ओल्ड रिजीम हम लोग कर रहे हैं, फिर हम लोग सीखेंगे न्यू रिजीम ऑफ टैक्स।